Hello everyone. Welcome to the 10th part of the 300 most important MCQ for your Civi General examination. Today we will be completing 100 questions of this series and I hope that you all are having a great learning experience from this series. In the last video we were discussing about the process of recovering overheads of a cost center from its output. So we call it cost absorption. C is the correct choice here. We try to absorb the overheads. So that's the process of recovering the overheads from cost. Let's start with the ratio analysis of commerce and accountancy subject. Calculate interest coverage ratio from the following information. In the question, net profit after tax given है 1,20,000, tax rate is also given, 50% long term debt is 15 lakh which is at the rate 10%. So first of all, interest coverage ratio का फॉर्मूला होता है आपका EBIT divided by the interest expense. In the question, PAT is given, profit after tax, or I can say earning after tax, 1,20,000. So we need to do reverse calculation in order to arrive at the PBIT or EBIT. So from EBIT we deduct interest expense and make it EBT, earning before tax, and EBT के अंदर से we pay tax and we arrive at the EAT. So basically here we need to do a reverse calculation. Tax rate was 50%. So obviously your PBT will be twice as your EAT, which is 2,40,000, right? Because the tax rate is 50%. तो 50% कटने के बाद आपका 1,20,000 यहाँ पे बच गया होगा. इंटरेस्ट रेट आपको ऑलरेडी गिवन है 15 लाख पे 20%, which is 1,50,000 here. So 3,90,000 is your earning before interest and tax. So your EBIT is 3,90,000 divided by the interest expenses, which is 1,50,000. So here interest coverage ratio will be 2.6 times. Now इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस को कवर करने के लिए 2.6 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट पड़ा हुआ है. सो दिस इज अ फेवरेबल कंडीशन. Option E is the correct choice here. Next question is, which of the following are not a part of liquid asset or quick asset? अच्छा, quick asset को भी also called as liquid asset. So cash, debtor, they both are quick asset. Prepaid expenses are not quick asset. They are current asset, but they are not quick asset. Bills receivable again is a quick asset. So here C will be the correct choice. Prepaid expenses are not quick asset, though they are current asset. So current ratio के अंदर तो ये पार्ट बन जाएंगे current asset का, but in case if we are computing the liquid ratio or the quick ratio, तब ये आपके quick assets का पार्ट नहीं बनेंगे. C is the correct choice here. Next question is, price risk is the risk of decline in the value of security or a portfolio. How can one transfer the price risk? Say for example, I bought some shares of HDFC Bank worth rupees 10 lakhs. So I am sitting on a long position. HDFC बैंक को मैंने obviously buy किया होगा. Now there is a risk कि अगर मुझे लगता है कि इसका प्राइस गिर जाएगा, मेरी सिक्योरिटी का या मेरे पोर्टफोलियो का प्राइस गिर जाएगा, दिस इज अ रिस्क फॉर मी. So in order to transfer this risk, in order to hedge this risk, I can take opposite position in the derivative market. Say for example, मैं यहाँ पे short position ले लेता हूँ futures में, या फिर पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं. सो दिस इज नोन एज हेजिंग. इन केस इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ रिस्क एंड यू नीड टू ट्रांसफर इट, देन यू नीड टू हेज इट बाय टेकिंग अपोजिट पोजीशन इन द मार्केट. ए इज द करेक्ट चॉइस हियर. अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर डेट एंड स्टॉक आर ट्रेडेड एंड मेच्योरिटी पीरियड इज मोर देन अ ईयर. तो यहाँ पर डेट एंड स्टॉक्स दोनों ही ट्रेड होते हैं, मेच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर. तो ऑप्शंस में काफी सारे मार्केट्स गिवन है, जैसे इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, रेपो रेट, मनी मार्केट. मनी मार्केट तो खैर शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, 1 ईयर से लेस वाला. कॉर्पोरेट डेट मार्केट, यहाँ पे डेट और स्टॉक दोनों इंक्लूडेड है और 1 ईयर से ज्यादा की बात हो रही है. तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए टारगेट कर रहे हैं जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर प्रोसेस कॉस्टिंग. इन प्रोसेस कॉस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस अकर्स at various stages of production. Out of these, one of the type of loss consists of loss due to carelessness. अच्छा, loss तो हुआ है, but that is due to carelessness or machine breakdown or accident, use of defective material etc. So ये negligence की वजह से यहाँ पे losses हुए हैं.
सो व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो जो लॉस नेग्लिजेंस की वजह से होता है दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस, एंड एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है कॉस्टिंग P&L के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो बी इज द करेक्ट चॉइस हियर। एबनॉर्मल लॉस आपका कॉस्टिंग P&L के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट? सो दिस इज रिलेटेड टू योर यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर। यहाँ पे आपको कॉस्ट शीट का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कॉस्ट शीट जिसको याद है वो आराम से कर लेगा। बेसिकली आपका प्राइम कॉस्ट बनता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अगर हम टोटल कर देते हैं, सो दैट इज नथिंग बट योर प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली हमको यहाँ पे गिवन नहीं है, पर रिलेशनशिप यहाँ पे गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 4000, परचेजेस कर रखी है हमने 16000 की, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है 8000 का, तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे निकल जाएगा विच इज 12000। देन लेबर अगेन इज गिवन 7000, डायरेक्ट लेबर 7000। सुपरवाइजर सैलरी एंड ओवरहेड आर नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, so we need to ignore them for the purpose of computation of the prime cost. Direct expenses again given है यहाँ पे 6000, so this sum up to become 25000. Option B is the correct choice here. अगला क्वेश्चन आपका रिलेटेड है यहाँ पे मैनेजमेंट से। so the objective of training is to increase productivity, morale and adaptability. बेसिकली आप अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाते हो ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी और दूसरी चीजें बढ़ जाए। दिस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन? तो बहुत सारे मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, आपकी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसकी हायरिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपका स्टाफिंग का पार्ट बन जाता है। सो बी इज द करेक्ट चॉइस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड एज डिस्क्राइब बाय द मैस्लो? सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू योर मैनेजमेंट सब्जेक्ट। मैस्लो थ्योरी डेफिनेटली सबने पढ़ी होगी, वहां पे एस्टीम, सोशल, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी वहां पे नीड्स गिवन है एक्सेप्ट कंट्रोल। सो ई कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर हियर। ये ऐसी कोई यहाँ पे नीड नहीं गिवन है मैस्लो की थ्योरी के अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी? तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया। कौन सा मेथड है जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं? बाय कंपेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज। टोटल एक्सपेंडिचर को देख के बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं? ऑप्शंस आर पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, टोटल आउटले मेथड, ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट मेथड। सो बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर को हम यूज करके टोटल आउटले मेथड से ऑप्शन सी से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप आंसर करेंगे विच इज रिलेटेड टू योर कंपनी लॉ, विच ऑफिशियल एक्ट एज द कन्वेनर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी? सो द ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ हमने 10 वीडियोस के अंदर 100 क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं। हमारा टारगेट है यहाँ पे 300 क्वेश्चंस कवर करने का। आई होप ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जॉइन आई एग्जाम बी एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।